we'll start the training after lightning the exam knowledge. So I would invite Ashna Madam also, Pallani Madam please. Good morning, all of you. आज इन हाउस ट्रेनिंग जो बचे हुए हैं तो बिल्डिंग वर्कशॉप और इसका रिसोर्स पर्सन सुषमा कुमारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन बहुत अच्छा रहेगा और ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, राजस्व स्कूल के लिए, बच्चों को फायदा हो। तो आज 5 आवर्स का ट्रेनिंग है आज, और रेस्ट 5 आवर्स विल बी कंडक्टेड ऑन 22nd of March. सेकेंड मार्च एग्जाम है। तो अच्छा ठीक है। तो ये 25 आवर्स का जो इन हाउस ट्रेनिंग है दैट विल बी कंप्लीटेड, और मैक्सिमम 25 आवर्स का जो सीबीएसई ट्रेनिंग था वो शायद ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट हो चुका है। नहीं, 25 आवर्स सीबीएसई ट्रेनिंग यू हैव कंप्लीटेड ऑल, और नेक्स्ट 10 आवर्स है जो 5 आवर्स आ जाएगा। 5 आवर्स ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड ऑन 22nd। तो होप कि बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन जाएगा और सबों के लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू। Thank you. Very delighted to tell you people that you people have completed your CBSE training. In house also you will complete. One day more we are going to conduct, that is on first. First there will be no examination, that day we can conduct. And those who are absent, again there will be date will be given to you people. So today's day topic is experiential learning by doing. Now. So before we start the training, I would like you people that you start the training by a small prayer. So both in English and Hindi, okay? Because experiential learning, we are going to learn. We all as teachers of different subjects, you people are also invited to just tell so that we can learn from each other. That how the subject can be made interesting. The main goal is that if the student is ready to learn, if he is happy to learn, then only whatever we want to just give him, we will get from the child. So, we are going to start with the whole prayer. Please join your hands and close your eyes. Okay, yeah. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ बंदी है विश्वास,
So हम होंगे कामयाब एक दिन that each and every child, the face will be happy, he will be ready to learn, and we will get the result what we want. Now, experiential learning. Many of you have come across what is this experiential learning? The definition you might have gone through, many would have said. Now, I will make you, I have tried my level best by help of story. Because as you people know, experiential learning is just by doing. So, story I will just in bilingual it will be, both in Hindi and English, so that we all are comfortable. So, once upon a time, there was a king. Okay. Means everybody was very happy there. They were having everything. Nobody was worried of anything. One day what happened? One scholar came in his kingdom. So the king welcomed him and he said that he wanted that he also just go and just see his kingdom how he is. So after just saying, the king said, ask the scholar that how he felt, how is his kingdom. The scholar said, king, really very nice kingdom you are having, everybody is very happy. But one thing there was missing. And the king was thinking, one thing was missing? Please tell me, he said. Then the scholar said, that I have seen everything. But one thing I couldn't find, that was the mango tree. Aam ka phal. So what is this mango? Well, aam kya hai? So he said that okay, how can I get that fruit? The scholar said for that you have to wait. आपको इंतजार करना पड़ेगा और उसके लिए आपको आपके राज्य में कुछ जमीन देनी होगी. Then he called his ministers. How can anybody say that we are not having mango tree? So both we should be providing the society and the environment good so that the child can learn properly. Now you might know about John Dewey, who just believe in learning by doing. So he is an educational philosophy emphasizes the concept of learning by doing, placing significant emphasis on experiential learning education. So this is one chart. Means the first is experience, the activity performed to do, then share, that is reaction, observation, publicity, process, analysis, the experience, generalize, to connect the experience to real world example, and then apply. For example, we can take the example of maths, or we take the example of English only. Okay, I will just start it so that I can give chance to the math teachers or the science teachers. Okay. For example, English. Grammar. How do we start? Noun. How do we start? Anybody? We can tell them about different objects kept in the classroom first, and we will tell them to identify objects. They can tell that these are the objects kept in the class, and then we can tell them that these are the naming words. In that way, they can say that this is noun, and we can explain that this is noun, naming words. Yeah, very and good. We can ask them to name the objects kept in the classroom, like the chalk and other things. Yeah. And in that, we can also tell them to name some of the students like that. We can tell them that these are naming words or nouns. Yeah. For example, what we were learning, the teachers were saying, they were just defining it, they were giving the definition, noun kya hota hai, verb kya hota hai. And what was happening, there was a burden. Noun is the name of the name, place, animal name of the, like it we were learning the verb. But now what we have to do, as ma'am has said, that we don't have to say noun. Noun means naming word, means name of anything. Then verb, action word, means action. Some activity. Yeah. Yeah, we have to make them do. Then adjective, it will become little bit hard. क्या adjective क्या है? But
But if we say describing word, जो describe करता है, सुंदर लड़की, अगली लड़की, ठीक है? So this way, for example, I will just give you one preposition. बाप रे, आज मैं पढ़ाने वाली preposition, isn't it? But if we just give me the name, position word, तो position का मतलब उसको समझ में आ रहा है, तो easy होगा, yes ma'am? By giving examples, we can explain him more. Yeah. Yes, you can keep so that you can. प्री मीन्स अर्ली, पहले. Yeah. प्री मीन्स अर्ली, पोजीशन के पहले जो लगेगा, हाँ, दैट इज प्रीपोजिशन. हाँ, this is also the way. And if we miss another way, you can just make them understand it differently. For example, it is not that we all teachers do, English teachers we do, that 2 days we keep for literature, 2 days we keep for grammar, 2 days we keep for a course book. Yes or no? Yes, everyone? Yes? Isn't it? The very first day when our class starts, we do the same way. 2 days course book, 2 days grammar book, 2 days. But what we have to do, for example, when we are just going through the poem, at that time only, we have to make them clear. For example, just see one poem. Mice, mice everywhere, on the table and under the chair. On one jump over my head, mice, mice at 2:30, sitting in up stool, mice, mice inside the room, sleeping on a broom. Mice, mice running along on my garden wall. Mice, mice, oh, why don't you go to Bangalore? So, what we have to do first of all, so we have to make 3 or 4 students read this poem. At that time, what will happen? We will be successful in making them read, making them pronounce properly. Then we are going to just tell them that, can you tell me the place where the mice went? चूहा कहाँ गया? So he can just say that by saying the poem that they are on the table. We make them clear by just saying, for example, I am not having, for example, on the table. We can just show. He will understand very easily. Under the table, like this. Between, here. They will enjoy also and they will just learn very easily and very quickly. The same way, my dear teachers, it's very easy to speak for me, but I would request you people that for few chapters also, you can just start the story with a puppet. For example, if in that story there is one owl, one there is mouse, means like that, which one will be easier for you to make, and then by the help of puppet, if you start the story, then they will understand very quickly. Yes or no? So, I think, shall we do one activity for that, but we have to go outside, isn't it? So, first of all, I have to see the arrangement has been made or not. Sir, can you just check that वहाँ पे सफाई हो गया है बाहर? Otherwise, हम 1-2 स्लाइड इधर का ले लेते हैं, फिर हम बाहर जाएंगे. Okay. Okay, I will just, for example, idioms. What is idioms? फ्रेजेस. उनको बेस क्लियर ही नहीं है उनका, उनको समझ ही नहीं आ रहा. मान लो कि जो बच्चा ABCD अच्छा से पढ़ा ही नहीं हो, अब हम उसको 7 में पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, उसकी क्या गलती है? ठीक है, लेकिन अगर वो अल्फाबेट जान जाएगा, वर्ड जान जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको फिर जोड़ना, फिर उसको सेंटेंस बनाना और फिर बाद में बदमाशी करेगा. ठीक है, तो अगर बच्चा नोटी है तो we are also responsible somewhere or the other. Okay, so you can just show one few more so that after that we have the lunch. In this upper primary maths class, a teacher uses resources imagined So before we have to seen supplement the science, textbook. now it's maths.
After reviewing his students' knowledge of angles, he divides them into groups and asks them to find examples of naturally occurring angles outside their classroom. One group is looking for right angles, while the other groups search for acute or obtuse angles. देखो टावर पर जो ऐसे है ना वो लिंक को बनाना ऐसे आया ये समकोण भी मतलब कि जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसी के हेल्प से जो बच्चा जानता है जो बच्चा नहीं जानता है वो देख सकता है व्हाट इज ट्रायंगल व्हाट इज रेक्टेंगल इसी वो भी हो सकता है आप भी डालिए है ना ये भी कर सामने वाला डालिए As well as enabling students to discover things for themselves, the outdoors can provide a welcome change of environment. समय समाप्त हो रहा है। One member of each group feeds back to the teacher. समूह संख्या C के प्रतिभागी कोई एक प्रतिभागी खड़े हो The teacher asks the student to explain the acute angles she has seen. उनसे जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं आपने क्या क्या नाम लिखा? साइकिल गाड़ी साइकिल का रिंग जो चक्का में बीच वाला हिस्सा यस सर साइकिल का रिंग या साइकिल का स्टॉक साइकिल गाड़ी रिंग तो गोल होता है गोल में जो साथ रहता था ऐसे ऐसे अंदर स्टॉक स्टॉक अच्छा ठीक है एक और आगे टावर टावर वो मोबाइल का जो वहां पे टावर मोबाइल का टावर तो सीधा होता है लंबा है तो उसमें सर ऐसे ऐसे लकीर बीच में बहुत लकीर है अच्छा बीच में जो रॉड ज्वाइन किया हुआ है ठीक है और After reviewing your students' knowledge with a practical activity, what would you plan to extend their learning? So as we have seen, it's a tough job. Really, it's a very tough job. When we have, I just took you people to play a game कि increase करेंगे vocabulary, isn't it? But it is a difficult job. But what happens ना कि आप लोगों ने जो वहाँ सीखा, ठीक है? तो वो words जो है वो हमेशा याद रखेंगे और जैसे कोई rain बोल रहा था, कोई humid बोल रहा है, कोई moist बोल रहा है, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे आफ्टर सो मेनी एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग वी आर सीइंग कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट तो कर देते हैं बट व्हाट इज हैपनिंग ओनली 10 to 15 स्टूडेंट्स जो है हमारे सिलेबस के अनुसार पढ़ पाते हैं और याद कर पाते हैं रेस्ट अगर हम लोग ध्यान दें हर एक क्लास में बच्चे जो है वो ना के बराबर कुछ नहीं सीख पाते हैं जो कि क्लास में नॉटी रहते हैं और बदमाशी करते हैं तो कुछ क्लासेस हम लोग इस तरह से कर सके ताकि कम से कम उनका बेस जो है वो क्लियर हो जाए जैसे कि अभी आंसर बता रही थी वो लड़की और सर ने बोला कि ये कैसे होगा तब फिर सर ने बताया कि हाँ मतलब कि टावर का किस पोर्शन के पास ट्रायंगल सा दिख रहा है या कहाँ पे रेक्टेंगल सा दिख रहा है या फिर जहाँ पे सर को लगा कि ये ट्रायंगल नहीं है तो लड़के ने बताया कि नहीं स्पोक के पास है या रिब के पास है तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चे जो आंख से देख रहे हैं और कर रहे हैं तो ज्यादा सीख पा रहे हैं उसी तरह से और एक है वीडियो बोथ मास है ना वो कैसे हम लोग सिर्फ बोथ मास So let's welcome them. Good afternoon, everybody. Mathematics is all around us. Good afternoon, everyone. Mathematics is all around us. Every time, whatever we measure, maths is involved. In maths, everything is in order. Let us learn about both maths. A simple mathematical rule for helping students to deal with mathematical operations in order. Today, we are presenting a small scale which depicts the importance of both maths. So
the teacher became with so much in new numbers. I'm so happy. But can you tell me how can I decrease the value? I can decrease your value. Surely? Take number 3 and 2. If I come between 3 and 2, then your value will be 1. Great! Repeated addition. What do you mean by this? Who are you? I am multiplication. I have double dose. Can you? पास में कुछ इन्होंने अपना लघु नाटिकाओं के द्वारा बच्चों हम लोग इवन इन द अरेंजमेंट क्लासेस या फिर मतलब जो हमारे जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के 10 to 15 उन्हीं को बोल दीजिए कि प्ले तैयार करके आओ और आप आराम से बैठ के पीछे देयर इज नो नीड टू जस्ट जाके हमको फ्री कर दो, हमको बहुत थक गए हैं, जाके पीछे बैठेंगे ना आराम से, क्यों रिक्वेस्ट करना। पिछले दिनों में In this secondary maths class, the teacher asks his students to perform role plays that show how the maths they have learnt relates to everyday life. The class are consolidating what they have learnt previously about surface area and the volume of solid shapes. जो ग्रुप्स हैं हमारे पास में कुछ इन्होंने अपना लघु नाटिकाओं के द्वारा इन चीजों को दर्शाने की कोशिश की है। ग्रुप 1 जो आपके सामने है, इन्होंने एक नाटिका The teacher asks group 1 to start the lesson by presenting their play to show the relationship between the volume of a cone and a cylinder. आप आए और अपनी लघु नाटिका प्रस्तुत करें, ठीक है? Imaginatively, the students use a family dispute to illustrate the idea. ये ऐसे हमेशा लड़ा करते हैं, तो आप ऐसा कुछ बताइए कि तीनों को इसमें जो एक्चुअली घर में जो भाई बहन का झगड़ा होता है ना कि कोई चीज रखा हुआ है और हमको चाहिए, फिर जब दे दो तो कम मुझे मिला, ज्यादा मिल गया, तो किस तरह से मैथ्स का यूज करके बहन जो है वो सिखाती है। भी है बराबर मिल गया। रुकिए भैया, अभी मैं आती हूँ। ये लीजिए भैया, इन तीनों को इनसे बांट के देखिए। ऐसे चीजें का नाम नहीं लगता है क्या होता है। देखो भैया, अब ये खाली हो गया। लेकिन बुआ जी आपने ऐसा क्या किया तो तीनों लोग को बराबर मिल गया? एक ऐसा शंकु बनाओ, शंकु का आधार बेलन के आधार के बराबर हो और शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो। अब कभी भी ऐसे लड़ना नहीं, कोई भी चीज चाहिए तो यही टेक्निक अपना लेना। जी बुआ जी। This teacher has confidence in his students and trusts them, so he stands at the back of the class to watch the role plays. बच्चों ने एक समूह में नाटिका प्रस्तुत की छोटी सी, जिससे The teacher explains that group 1 has shown the volume of a cone to be 1/3 that of a cylinder of the same width. बात समझ में आ गई? ठीक है। जब हम लोग को सर पढ़ा रहे थे आयतन के बारे में शंकु के, उसमें मजा भी बहुत आया। हम लोग जो था इसको छोटा सा नाटक बना के प्रेजेंट करके क्लास में दिखाएंगे। जो हम आपस में भाई बहन लड़ते हैं कम ज़्यादा सामान के लिए, हम लोग आप घर में आपस में बंटवारा बराबर कर सकते हैं। आयतन निकालना हमको आ गया। अब हमारे पास दूसरा ग्रुप आएगा, वो अपनी नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। So this week the students जो है इन्वॉल्व भी हो गए, उनका जो स्पीकिंग है वो भी हो गया और सीख भी पाए प्रैक्टिकल करके। ठीक है? These role plays provide opportunities for students to work in groups and for the teacher to assess their understanding. मेरे पिताजी को एक डब्बे में पेंट करवाना है, अपने पिताजी की आकृति बनवानी है, क्या बना देंगे? जी बात करिए। क्या है बाबू जी? The next group presents a commercial transaction with a painter to illustrate their maths points. तुम बता दो कितना रुपया लगेगा? ये मेरे सामान 1 सेंटीमीटर का लगेगा आपका 2 रुपए। आपका कहना है मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर की जुताई का 2 रुपए लगेंगे। अच्छा बेटा रमेश सुरेश यहाँ जरा, अरे जो पेंटर बेटा लेकर आए वो तो बहुत महंगा बता रहा है, कह रहा है 1000 रुपए हम लेंगे।
topics, the students describe how this type of activity helps them to feel more confident using maths outside school. और सही पैसे अपना मतलब सही पैसे दे सकते। सर हम लोग नहीं डरते थे, लेकिन हम लोग के मन में डर रहता था कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे कुछ गलत कर देंगे, सारे बच्चे देखेंगे कि इसको सवाल नहीं आता, तो इस वजह से डर लगता था। The teacher encourages another group to present their role play. One of the group enacts the teacher's role and instructs students to count. आप लोग इसको ये भी देख सकते हैं कि आप लोगों ने मेंसुरेशन पढ़ा लिया हो, लेकिन सचमुच इस तरह का वर्क देख दीजिए कि आप लोग कैलकुलेट करके बता पा रहे हैं, क्योंकि मेन पढ़ना क्यों है, उसको अप्लाई करने के लिए। जब हम उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, बता ही नहीं पाते अपने पेरेंट्स को कि हाँ कितना पैसा लगेगा उस रूम को पेंट करने में, तो फिर पढ़ाई से क्या करें। और जिस दिन बच्चा को ये बात पता चल जाएगा तो बहुत ध्यान से पढ़ेगा। Calculate the volume of items in their home. आपने देखा कि हमें कहीं भी किताब में ऐसी चीजें नहीं दी होंगी, जो भी कुछ हम लोग देखते हैं समझते हैं हम लोग उसी को करते हैं, प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं उसका। किताबी ज्ञान तो केवल एग्जामिनेशन के लिए होता है, ये ज्ञान हमारा जीवन भर काम आएगा। और अभी बच्चे ध्यान नहीं करते और इसके आयतन जो भी कुछ मिले, बेलनाकार, शंक्वाकार और बॉल, उसका निकालें आप आयतन, जो ना समझ में आए हमसे पूछें। हमने बात करी थी वो अच्छी गई थी, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हमारी डेली लाइफ में भी काम आएगा। The student explains that learning practically is more memorable and relevant to real life than book-based learning for exams. तो मैं परीक्षा किया पाएगा बाद में। खाना आप क्या है? These students are relating their school maths to everyday problems. How can you do this with your classes? And ultimately, how we have started our session, that if the student is ready to learn, if he is happy to learn, then only he can achieve the 100% what we want to teach to him. So here, a quick activity for a minute. All of you take a paper and. Huda was sitting very quietly in the class. Falak asked, "What happened, Huda?" She said, "I haven't completed my assignment." "Oh," said Huda, "you are in hot water now. You are in hot water now." So, how the teacher will make the student clear? Means, when you people don't do any work, what does the teacher do? What she do if you are not, have not? अरे बाबा, कोई काम नहीं करोगे तो वाइफ क्या करेगी घर में? हस्बैंड क्या करेंगे? डांटेंगे, है ना? Same way, the child will understand that hot water now का मतलब क्या है कि मैं कहाँ हूँ? परेशानी में हूँ। क्यों मैं परेशानी में हूँ? क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया है। Now, the students were asked to decorate the Christmas tree. ठीक है, समझ में आ गया ये लाइन? Everybody was thinking how to do it, but Cat was tension free. He said, "I have done it before. It is a piece of cake for me. It is a piece of cake for me." क्यों? क्योंकि वो बहुत आराम से अपना काम कर लिया है, वो टेंशन फ्री है, वो आराम से इसलिए कर लिया है क्योंकि उसके लिए ये काम जो है अब पीस ऑफ केक फॉर मी है। तो पीस ऑफ केक का मतलब क्या हो गया? इजी टास्क बताएंगे कि ये उसके लिए बहुत इजी है। Now, one child troubled the other students. We are familiar. कोई ना कोई 2-4 बच्चे रहते हैं जो सबको परेशान करते हैं. Class teacher asked the monitor Afaq to keep an eye on him. तो सेंटेंस देख ऐसा लगता है ना कि बच्चे को बहुत ज्यादा रटवाने की जरूरत नहीं है, वो खुद सेंटेंस पढ़ेगा और खुद समझ जाएगा कि द टीचर क्या बोल रही है, टू कीप एन आई ऑन हिम। तो सेंटेंस पढ़ने मींस ऐसे क्या होगा, रटने से क्या होगा कि तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें याद होते जाएगा, वो हम लोग हमेशा याद रखेंगे। कीप एन आई ऑन हिम मतलब कि क्या, हमें नजर रखना उसके। नाउ Arifa was a
bubbly girl. She used to talk and chat a lot. She was sitting very quietly. Her friend, when it asked what happened, Arifa said nothing. I'm just feeling blue. I lost my favorite dog. I'm just ending because we have games. Means we have seen 4 things. Now, ये तो हो गया कि कैसे आइडियम्स का बहुत इजी बच्चों को आप सिखा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से मतलब सीनियर क्लासेस में हम लोगों को बैठ के सोचना पड़ेगा कि जो टफ चीज है कैसे हम लोग इसको इजी वे में करके बनाएं और फिर किस तरह से मतलब कि बच्चे इंटरेस्टिंग वे में इसको देखें। ये हम लोग अभी छोटे क्लास से शुरू किए हैं। अब बोर्ड में हम लोग इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, ऑफ केक, अ पीस, वाटर इन हॉट। अब तुरंत बच्चों को पढ़ाने का रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बच्चे को खड़े करके बोलेंगे ये सही लिखा हुआ है ऑफ केक पीस, तो बच्चा बोलेगा अटपटा सा लग रहा है ना। तो फिर कोई बच्चा क्या बोलेगा, इसका सही कौन बताएगा? Who will say the correct answer? Piece of cake. Piece of cake. So you have to be very fast. I think Piece of cake. Piece of cake first. Waiting for the bite. Okay. Piece of cake. Okay. Yes, piece of cake. Thank you. Huh? ज़्यादा नहीं। Water in hot. What first? In hot water. In hot water. In hot water. Yeah. On I him. Yes, please sir, help me. I on him. Thank you. Apple of my eye. Apple of my eye. Apple of my eye. Okay. So this way, the class will be very interesting. And again, we can just tell them to make sentence. And certainly they will make sentence. Only the thing is that कि have के जगह पे had लगाएगा, have के जगह पे was लगाएगा. That the teachers have to correct. And this way only they will learn. Now, a very nice game to increase the vocabulary. Okay. I would just like few volunteers. Savita ma'am, will you help me? Yes. Roshan, will you please help me? ये देखो। Take out, आप लोग अपना पेन निकालिए और ना स्टूडेंट नहीं करना है। There is one here. Roll number. How many teachers are? Anybody can just very quickly just count how many teachers are here? So usually what happens now, there is a rush of syllabus completion, less time, and there is a burden that will be asked कि आपका portion complete हुआ है कि नहीं हुआ है. Clear? So what is happening that we just start our teaching. But the thing is that last training also we have done alertness, isn't it, and activeness. How we have done the activity, clap. Shall we repeat it so that all are thinking, Sushma man again training, then this training day over. And few aunties sitting at the back. Again what भी होगा? Means they won't be listening to me. Again what भी होगा? पता नहीं, कुछ तो फायदा होता ही नहीं है, फालतू का एकदम. So the same way the students also, few of us have seen, yes, Sushma ma'am has done what she will teach, take out the book, and few आ गई दिमाग खराब. अब बाल के लिए टोकेंगी, शूज के लिए टोकेंगी, है ना? So what is happening that we have to warm up our periods. Means जो भी हम start कर रहे हैं तो warm up. तो shall we? मुझे भी लग रहा है बहुत comfortable zone पे एकदम बहुत आराम से. Shall we start that activity? Okay. 1, 2, 3, clap. All of you. 1, 2, 3, clap. No, just one time. All of you. 1, 2, 3, clap. Once. 1, 2, 3, clap. 1, 2, 3, clap. Now, I would just interrupt. Just think that you people are student and I am your teacher. कितना मुश्किल बनो शुरू में समझने में. The same thing happens with the
रेपिटेशन चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, है ना। उस पर गुस्सा नहीं होना है। गैरी मैंने तो 2 बार बोल दिया है, क्योंकि अभी सिचुएशन हम लोगों ने देखा कि कैसा सिचुएशन था। मुझे 2 या 3 बार बोलना पड़ा कि नहीं बार बार क्लैप नहीं, एक बार क्लैप। ओके, सो 1 2 3 क्लैप, 1 2 3 क्लैप, 1 2 3 क्लैप, 1 2 3 क्लैप, 1 2 3. I'm not said clap. So it was. So how many of you have not clapped? Most of you have clapped. No clapping. Very honest. Okay. Give me the seat. She is very honest. अच्छी बच्ची है क्लासी. So you deserve a top. अरे हम लोग भी क्लास नहीं की। No. उसी से भी बोला था ना, मैं क्यों मानूं? You have to understand. पास में कुछ एक इन्होंने अपना लघु नाटिकाओं के द्वारा बच्चों हम लोग Even in the arrangement classes या फिर मतलब जो हमारे जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के 10 to 15, उन्हीं को बोल दीजिए कि प्ले तैयार करके आओ और आप आराम से बैठ के पीछे। There is no need to just जाके हमको फ्री कर दो, हमको बहुत थक गए हैं, जाके पीछे बैठेंगे ना आराम से, क्यों रिक्वेस्ट करना। पिछले दिनों में In this secondary maths class, the teacher asks his students to perform role plays that show how the maths they have learnt relates to everyday life. The class are consolidating what they have learnt previously about surface area and the volume of solid shapes. जो ग्रुप्स हैं हमारे पास में कुछ एक इन्होंने अपना लघु नाटिकाओं के द्वारा इन चीजों को दर्शाने की कोशिश की है। ग्रुप 1 जो आपके सामने है, इन्होंने एक नाटिका The teacher asks group 1 to start the lesson by presenting their play to show the relationship between the volume of a cone and a cylinder. आप आए और अपनी लघु नाटिका प्रस्तुत करें, ठीक है? Imaginatively, the students use a family dispute to illustrate the idea. ये ऐसे हमेशा लड़ा करते हैं, तो आप ऐसा कुछ बनाइए कि तीनों को इसमें जो एक्चुअली घर में जो भाई बहन का झगड़ा होता है ना कि कोई चीज रखा हुआ है और हमको चाहिए, फिर जब दे दो तो कम मुझे मिला, ज्यादा मिल गया, तो किस तरह से मैथ का यूज करके बहन जो है वो सिखाती है। भी है बराबर मिल गया। रुकिए भैया, अभी मैं आती हूँ। ये लीजिए भैया, इन तीनों को इनसे बांट के देखिए। नाम नहीं लगा क्या हो रहा है। देखो भैया, अब ये खाली हो गया। लेकिन बुआ जी आपने ऐसा क्या किया तो तीनों लोग को बराबर मिल गया? एक ऐसा शंकु बनाओ, शंकु का आधार बेलन के आधार के बराबर हो और शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो। अब कभी भी ऐसे लड़ना नहीं, कोई भी चीज चाहिए तो यही टेक्निक अपना लेना। This teacher has confidence in the students and trusts them, so he stands at the back of the class to watch the role plays. बच्चों ने एक समूह में नाटिका प्रस्तुत की छोटी सी, जिससे The teacher explains that group 1 has shown the volume of a cone to be 1/3 that of a cylinder of the same width. बात समझ में आ गई? ठीक है। जब हम लोग को सर पढ़ा रहे थे आयतन के बारे में, शंकु के, उसमें मजा भी बहुत आया। तो हम लोग जो था इसको छोटा सा नाटक बना के प्रेजेंट करके क्लास में दिखाएंगे। जो हम आपस में भाई बहन लड़ते हैं कम ज़्यादा सामान के लिए, हम लोग आप घर में आपस में बंटवारा बराबर कर सकते हैं। आयतन निकालना हमको आ गया। अब हमारे पास दूसरा ग्रुप आएगा, वो अपनी नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं आपके साथ। So this week the students जो है इन्वॉल्व भी हो गए, उनका जो स्पीकिंग है वो भी हो गया और सीख भी पाए प्रैक्टिकल करके, ठीक है? These role plays provide opportunities for students to work in groups and for the teacher to assess their understanding. मेरे पिताजी को एक डब्बे में पेंट करवाना है, अपने पिताजी की आकृति बनवानी है, क्या आप बना देंगे?
commercial transaction with a painter to illustrate their maths points. तुम बता दो कितना रुपया लगेगा, ये मेरे सामान 1 वर्ग सेंटीमीटर का लगेगा आपका 2 रुपए। आपका कहना है मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर की जुताई का 2 रुपए लगेंगे। अच्छा बेटा रमेश सुरेश यहाँ जरा, अरे जो पेंटर बेटा लेकर आए वो तो बहुत महंगा बता रहा है, कह रहा है 1000 रुपए हम लेंगे। जो डाउट आया कि एक कम हो गया, ऐसे हम लोगों को Afterwards, the students describe how this type of activity helps them to feel more confident using maths outside school. और तब सही पैसे अपना मतलब सही पैसे दे सकते। सर हम लोग नहीं डरते थे, लेकिन हम लोग के मन में डर रहता था कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे कुछ गलत कर देंगे, सारे बच्चे देखेंगे कि इसको सवाल नहीं आता, तो इस वजह से डर लगता था। The teacher encourages another group to present their role play. One of the group enacts the teacher's role and instructs students to count. आप लोग इसको ये भी देख सकते हैं कि आप लोगों ने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा लिया हो, लेकिन सचमुच इस तरह का वर्क दे दीजिए कि आप लोग कैलकुलेट करके बता पा रहे हैं, क्योंकि मेन पढ़ना क्यों है, उसको अप्लाई करने के लिए। जब हम उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, बता ही नहीं पाते अपने पेरेंट्स को कि हाँ कितना पैसा लगेगा उस रूम को पेंट करने में, तो फिर पढ़ाई से क्या करें। और जिस दिन बच्चों को ये बात पता चल जाएगा तो बहुत ध्यान से पढ़ेगा। Calculate the volume of items in their home. आपने देखा कि हमें कहीं भी किताब में ऐसी चीजें नहीं दी होंगी, जो भी कुछ हम लोग देखते हैं समझते हैं हम लोग उसी को करते हैं, प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं उसका। किताबी ज्ञान तो केवल एग्जामिनेशन के लिए होता है, ये ज्ञान हमारा जीवन भर काम आएगा। और अभी बच्चे ध्यान अपने घर पर और इसके आयतन जो भी कुछ मिले, बेलनाकार, शंक्वाकार और बॉल, उसका निकालें आप आयतन, जो ना समझ में आए हमसे पूछें। बात करेगी वो अच्छी गई थी, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हमारी डेली लाइफ में भी काम आएगा। The student explains that learning practically is more memorable and relevant to real life than book-based learning for exams. तो मैं परीक्षा की आप आगे बाद में बोलूँगी। These students are relating their school maths to everyday problems. How can you do this with your classes? So both we should be providing the society and the environment good so that the child can learn properly. Now you might be know about John Dewey, who just believe in learning by doing. So his an educational philosophy emphasizes the concept of learning by doing, placing significant emphasis on experiential learning education. So this is one chart. The first is experience, the activity performed to do, then share, that is reaction, observation, publicity, process, analysis, the experience, generalize, to connect the experience to real world example, and then apply. For example, we can take the example of maths, or we take the example of English only. Okay, I will just start it so that I can give chance to the maths teachers or the science teachers. Okay, for example, English grammar. How do we start? Noun. How do we start? Anybody? We can tell them about different objects kept in the classroom first, and we will tell them to identify objects. They can tell that these are the objects kept in the class, and then we can tell them that these are the naming words. In that way, they can say that this is noun, and we can explain that this is noun, naming words. Yeah, very and good. we can ask them to name the objects kept in the classroom, like duster, chalk, and other things. Yeah. And in that, we can also tell them to name some of the students like that. We can tell them that these are naming words or nouns. Yeah. For example, what we were learning, the teachers were saying, they were just defining it. They were giving the definition. Noun क्या होता है, verb क्या होता है. And what was happening? There was a burden. Noun is the name of the name, place, animal, name of the. Like it we were learning the verb. But now what we have to do, as ma'am has said, that we don't have to say noun. Noun means naming word, means name of anything. Then verb,
action word. Means action. Some activity. Yeah. Yeah, we have to make them do. Then adjective, it will become little bit hard. क्या adjective क्या है? But if we say describing word, जो describe करता है, सुंदर लड़की, अगली लड़की, ठीक है? So this way, for example, I will just give you one preposition. बाप रे, आजकल पढ़ाने वाले preposition, isn't it? But if we just give me the name, position word, तो position का मतलब उसको समझ में आ रहा है, तो easy होगा, yes ma'am? By giving examples, we can explain him more. Yeah. Yes, you can keep so that you can. Pre means early, पहले. Yeah. Pre means early, position के पहले जो लगेगा. हाँ, That is preposition. हाँ, this is also the way. And if we means another way, means you can just make them understand in different ways. For example, it is not that we all teachers do, English teachers we do, that 2 days we keep for literature, 2 days we keep for grammar, 2 days we keep for a course book. Yes or no? Yes, everyone? Yes? Isn't it? The very first day when our class starts, we do the same way. 2 days course book, 2 days grammar book, 2 days. But what we have to do, for example, when we are just going through the poem, at that time only, we have to make them clear. For example, just see one poem. Mice everywhere, on the table and under the chair. On one jump over my head, mice at 2:30, sitting in up stools, mice inside the room, sleeping on a broom. Mice running along on my garden wall. Mice, oh, why don't you go to Bangalore? So what we have to do, first of all, so we have to make 3 or 4 students read this poem. At that time, what will happen? We will be successful in making them read, making them pronounce properly. Then we are going to just tell them that, can you tell me the place where the mice went? चूहा कहाँ गया? So he can just say that by saying that poem that they are on the table. We'll make them clear by just saying, for example, I am not having, for example, on the table. We can just show. He will understand very easily. Under the table, like this. Between, here. They will enjoy also and they will just learn very easily and very quickly. The same way, my dear teachers, it's very easy to speak for me, but I would request you people that for few chapters also, you can just start the story with a puppet. For example, if in that story there is one owl, one there is mouse, means like that, which one will be easier for you to make, and then by the help of puppet, if you start the story, then they will understand very quickly. Yes or no? So, I think, shall we do one activity for that, but we have to go outside, isn't it? So, first of all, I have to see the arrangement has been made or not. Sir, can you just check that वहाँ पे सफाई हो गया है बाहर? Otherwise, हम 1-2 स्लाइड इधर का ले लेते हैं, फिर हम बाहर जाएंगे. Okay. Okay, I will just, for example, idioms. What is idioms? Phrases. We will be happy, then only we can just make our class happy, our students happy, and ultimately how we have started our session, that if the student is ready to learn, if he is happy to learn, then only he can achieve the 100% what we want to give to him. So here, a quick activity for a minute. All of you take a paper. Third, smile. And fourth, optimism. Next, festival. Winning जब हम जीत जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जैसे अभी हो रहा था. जो लोग हार रहा था वो गुस्सा में हो जा रहा था, जो जीत रहा था वो खुश हो जा रहा था.
Then new dress, family से भी हम बहुत खुश होते हैं. Then meeting friends. Next favorite food. Then party. And this one is most important. That is related to Anupma ma'am. Anupma ma'am, this is related to you. Dress arrangement. Then next salary increment. Then holiday, outside party, promotion, bonus plus DA, fitness. अगर हम fit हैं, then we will be happy. Picnic and last but not the least, no medicines in our life. Very nice. Then we are happy, okay, then we laugh. Next, cracking jokes. And next one is watching movie. If we watch a good movie, we enjoy a lot. Doing kind deeds. If you do a very good work, you will be very happy. Visiting new places. I hope everyone likes that. Wearing new clothes. Quality time with friends and families. Eating delicious foods. Picnic. Getting compliments. हैप्पीनेस से आपको किस किस चीज़ से हैप्पीनेस हम लोगों ने इसको प्रयागराजी के तौर पे लिया और इन सबको इकट्ठा किया. हमारा क्वेश्चन का समझ यही था कि शायद हमें प्रयागराजी शब्द लिखना है तो हम ये शब्द को लिखेंगे. And cheerful and joyful, they are same like me. We go play fun, all are the same news. Light, cheers, happiness, positivity, merry, jovial, smiley, contented and jolly. Okay. जिस रूम में हम लोग बैठे हैं, मैं इस बात को इंक्लूड करना चाहूंगी. जिस दिन हम लोग का इंक्रीमेंट होता है, डीए बढ़ता है, उस दिन हम बहुत हैप्पी रहते हैं. जिस दिन कम क्लासेस मिलता है, उस दिन बहुत हैप्पी फील करते हैं. मैं हैप्पी को ही एक्सपेक्ट करना चाहूंगी. और लाइब्रेरी में बैठ के तो हर किसी को हैप्पी ही फील होता है. सभी आए, एंजॉय करें और हैप्पी फील करें हमारे लाइब्रेरी में. मस्त वेलकम. आज कछुआ खरगोश की कहानी में ये बताएंगे किस तरह से एक छोटा सा जीव और एक बहुत तेज चलने वाले को किस तरह से हरा करना. एक कछुआ था, खरगोश था और दोनों में वेश्यापी लगी. एक मुख्य पॉइंट बनाया गया कि वहाँ तक जो सबसे पहले दौड़ कर जाएगा वो विजेता था. मैं कौन जीता? ये कहानी आप लोग सुनी तो हम लोग फिर कछुआ जो है और हिरन खरगोश वो लोग आगे दौड़ लगाते हैं. दौड़ने के क्रम में खरगोश को ये सोचता है कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ. तो वो है तो आगे जाकर तेज दौड़ता है और आगे जाकर उसके दिमाग में ये बैठा हुआ था सोच लिया था चलता है वो वहाँ आराम से बैठता है. अब कछुआ लेकिन फिर भी वो है सो आगे नहीं बढ़ रहा है. वो चलते चला जा रहा है और अपना जो लक्ष्य था वहाँ तक हमारे था. ये भी था अपने ऊपर ज्यादा हमारे लिए होना चाहिए. क्या कछुआ जीत जाता है? हाँ, कछुआ फिर वहाँ जीत जाता है. खरगोश जाता अचानक उसकी नींद खुलती है और जब देखता है कि अभी ये सोच रहा है कि कछुआ पीछे ही होगा. जब वो दौड़ना शुरू करता है, जब वहाँ से पास से वहाँ जाकर देखता है कि कछुआ पहले ही वहाँ बैठा हुआ है. तो ये क्या है, क्या आप लोग कहानी सुने, आप लोग एक नहीं सुना क्या समय पर करना चाहिए. जो काम
आलस छोड़कर जो काम आपको मिला है, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसको पहले आप अपने स्वामी में Thank you. Very nicely you have explained the story कि हमें आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए. We are going to discuss the topic preposition. So, can I ask if any one of you can define the preposition? So, I am going to start, and I hope all of you know preposition also, but I am telling you here. Preposition is a word which is placed before noun or pronoun to show its relation or direction, time, place, location, or to introduce an object. So now I am giving you some examples of preposition like in, at, with, between, and upon, behind, on, like that. So now we will explain you preposition with some examples. And so first of all, we will do some activity to explain the prepositions, and I am giving you some examples and activities. First example is put the bottle on the bench. And I am asking so madam to please explain this example with an activity, and she has put the bottle on the table. So here the preposition on is used. Next example is keep the bag upon the table. Sorry, yes, okay. Yes. Keep the bag upon the table, Chandani ma'am. This is the bag and I'm keeping it on the table. Next example is behind. Chandani ma'am, please. Okay, Meenakshi ma'am, please stand behind Chandani ma'am. Yes, ma'am, I'm standing. Okay, I hope you will understand that how the preposition behind is used. Our next preposition is among, and I request Seema ma'am to please use this. Distribute the pencils among the children. Seema ma'am, please. Among is used for more than two. So I am distributing this pencil. So I hope you understand the preposition among is used for more than two. And you can also give other examples of among. Distribute these sweets among the children. Now I request you all to please give one more example of upon. Seema ma'am, please. Ma'am, we can say that the cat jumped upon the car. Yes, very good. Next, behind. Meenakshi ma'am, please. The car is behind other things. One boy is standing behind the car. Yes, very good. You can show also Okay. How can I show here? behind. Boy is standing behind the car. Next, ma'am. Acha, you ask. Okay, next is on. So, madam, please show one. I am behind Pallavi madam. This grades on the table. Okay, very good. So, anything else you want to say? In front of, between, no, yes, she is standing in Yes. front of me. Meenakshi ma'am, please stand between Chandani ma'am and Seema ma'am. So, she is standing between two. So, this is an example of between. There are lots of prepositions, but Yeah, please, keeping our the time lesson. in our mind, we have used only few. Thank you. Thank you. So you people have tried your level best, and I think just by giving the definitions, the students, and now if you will show behind, in front, above, and also you can just take a few pictures. You can make few things also, isn't it? For example, some flower or pictures or mouse, and then we can just show. Thank you very much. This one is the brighter color. Then male part is androecium and female part is gynoecium. So, flower is also called reproductive organ. Reproductive organ because male and female both parts are present in the flower. Same flower. Okay. So different words have used in the biology. That is a bisexual and unisexual. Bisexual, that means both male and female reproductive part present in same flower is called bisexual flower. And unisexual, that means only one, either male or
female reproductive part present in the flower. So that is called unisex. And this flower is bisexual. Bisexual. So both male and female parts are present. This is the little bit information about the flowers we have shared with you. Thank you. Good morning, students. Today in our class we will learn about heat. So you people know what is heat? It's a type of a form of energy. ठीक है? तो हम जब किसी भी चीज को आप लोग घर में मैगी तो खाना पसंद नहीं करते हो, जब आप मैगी बनाते हो, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हो? गैस ऑन कर दिया, उसके बाद utensil, ठीक है, fill that utensil with water and place that in the stove, ठीक है. After some time क्या होता है? Water starts boiling, ठीक है. तो जो वाटर से भी पहले जो आपने यूटेंसिल रखा होगा, बर्तन रखा होगा, वो गर्म होता है, राइट? आप पहले बर्तन रखते, पहले बर्तन हीट होगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद आप उस पानी को टच करोगे तो फिर क्या होगा? वो वाटर भी हीट होने लगता है, ठीक है. यानी हीट जो पहले आप स्टोव से ये हो रहा था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है. तो आज आपको ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में there are 3 ways to transfer heat. हीट तरीके से क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर लेगी, बोल बोले प्राइस दे दे इज्जत का सवाल. ये मैं आपको एक बुक दे, ये सपोज ये है एनर्जी, ठीक है. अब मैंने हीट इनको ट्रांसफर किया, अब आप नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर करिए, फिर आप उनको ट्रांसफर करिए, नेक्स्ट, ठीक है. अब ये जो पहला तरीका है, ये हीट ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा समझ के इसके बाद हम आपका करा देते हैं. आप 2 लाइन बोल के आप चले जाएंगे, 2 लाइन बोल के चले जाएंगे, प्राइस देना होगा, ठीक है. अब इसमें क्या हुआ? मैंने मोनिका को हीट ट्रांसफर किया, लेकिन क्या मेरा खुद पोजीशन चेंज हुआ? सिर्फ हीट का पोजीशन चेंज हुआ. फिर मोनिका ने अंजुमन को, अंजुमन ने अंजुमन को, अंजुमन ने अलका मन को. पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ किसका मूवमेंट हो रहा है? एनर्जी का मूवमेंट, ठीक है. और इस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन. वेरी गुड. इस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को हम लोग बोलते हैं, एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर बाय हीट, ट्रांसफर बाय कंडक्शन, ठीक है. अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी करके दिखाते हैं. अब ये हीट है, ठीक है मोनिका, मैंने मोनिका को हीट ट्रांसफर किया हुआ है. अब ये पार्टिकल अगर खुद जाके चल के इस हीट को अलका मैम तक पहुंचाती है, इसमें क्या हो रहा है? पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है. पार्टिकल पहले खुद हीट हुआ, ठीक है, उसके बाद वो पार्टिकल मूव करते हुए दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है. इस फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन, ठीक है. हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन. इसमें क्या होता है? पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट से हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो. क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, किसी को पता है? वेरी गुड. ट्रांसफर बाय रेडिएशन. रेडिएशन में क्या होगा? अब हमको यहाँ से वहाँ हीट पहुँचाना है, लेकिन बीच में कोई मीडियम नहीं, ठीक है. अगर मान के चलते हैं हमको यहाँ से अलका मैम तक पहुँचाना और बीच में मेरे पास कोई भी मीडियम पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तब हम क्या करेंगे? यहाँ से हम एनर्जी फेंकेंगे और अर्चना मैम तक पहुँच जाएगा. तो अलका मैम तक इसमें क्या हुआ? कोई बीच में मीडियम नहीं था. हीट का डायरेक्ट ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता है, जिसमें कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है. कोई एग्जांपल बता पाएगा हमको? वेरी गुड. सन का जो रेज डायरेक्ट अर्थ तक पहुंचता है, बीच में हमें पता है कि कोई मीडियम नहीं है. एटमॉस्फेयर सिर्फ अर्थ के अराउंड है, तो स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बट सन का जो रेज है एनर्जी है वो हमें हमारे तक पहुंचता है विदाउट एनी मीडियम. वो कैसे पहुंचता है? ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है. तो आज हमने कितने टाइप के फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़े? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी 3 टाइप. पहला
सर लोग एक बोले तो सर हाँ direct heat transfer without any light. So this was the method of demonstration. हमने ऐसे छोटे-छोटे एक्टिविटीज से डेमोन्स्ट्रेट करके छोटा-छोटा एक्टिविटीज से हम साइंस के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को क्लास में एक्सप्लेन करते हैं. Well done, science teachers. You will try your level best to make the concept clear. Thank you. Now the next one, history group. Okay, you people can take the mic. The maths group. गुड मॉर्निंग. आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा एक स्टोरी थोड़ा बता रहे हैं. उस स्टोरी में ये ध्यान रखना है कि मैडम अरेंजमेंट के लिए वहाँ तक पहुँच बहुत सारे Okay, listen the story. So you have to go there. So you have to go there. So you have to go there. हम लोग यही जानते हैं कि उसमें कछुआ जीत जा रहा है, लेकिन ये कहानी का एक पार्ट है. एक बार ऐसा हो सकता है कि कछुआ जीत जाए और खरगोश को गलती से नींद आ जाए, लेकिन जब दूसरे दिन मैच होगा, अगर वैसा ही कुछ खेल होगा, तो उस दिन जो है खरगोश जहाँ तक पहुँचना है वहाँ पहुँच के ही रुकेगा और उस दिन जो है वो कछुआ पीछे हो जाएगा. तो फिर दोनों का अलग अलग स्ट्रेंथ है. तो जब कोई मैच डिसाइड होता है तो वो एक जैसा देख के होना चाहिए. इस बार कछुआ क्या बोला कि मैच तो होगा, लेकिन जगह हम बताएंगे, और वो जगह क्या बताती है, एक नदी का रास्ता होता है. और जब नदी का रेस हुआ तो उसमें क्या हुआ कि वो जो कछुआ है वो नंबर वाला और खरगोश पीछे रहा. ये कहानी का तीसरा पार्ट है. एक बार कछुआ जीता, एक बार खरगोश जीता और एक बार फिर कछुआ जीता. लेकिन जब दोनों फिर एक जगह आए तो सोचा अगर हम लोग एक साथ ही रहना है, एक क्लास में रहना है, और ऐसे ही अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो हम लोग का सोचने का तरीका भी गड़बड़ हो जाएगा. तो बोला क्यों ना, चलो रास्ता वही है, नदी ही है. लेकिन इस बार क्या हुआ कि कछुए के पीठ पे खरगोश बैठ गया और दोनों एक साथ जगह पे पहुंच गए. इसका मतलब है कि अगर हम लोग एक दूसरे का हेल्प करें तो हम लोग जो है साथ साथ कहीं पहुंच सकते हैं. तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल. यहाँ पे रैशनल वर्ड जैसे ही आएगा तो हमारे दिमाग में से डिफिनेशन आएगा, लेकिन उस डिफिनेशन को जानने से पहले हमको बेसिक कुछ नॉलेज होना है. जैसे हम लोग क्लास में कितने स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, तो हम लोग कहीं से गिनना स्टार्ट करते हैं. तो गिन रहे 1 2 3 4 5 6. ये सारा जो नंबर हो रहा है ये नेचुरल है. Where was your student Chandan sir? Where was Sarma sir? Canteen. Will you give him punishment? Now today we are going to learn 2D. You know 2D? बताइए 2D के बारे में क्या होता है? अच्छा 2D में डर लगता है? कैसे डर लगता है? मेंस्ट्रुएशन का फॉर्मूला तो 2D में याद नहीं होता है. इसलिए याद नहीं होता है कि आप रखते हो, इसीलिए याद नहीं होता. अच्छा ये क्लासरूम में 2D है क्या? देखिए. Like top part 2D Loudly. and floor part front, back and side. 2D है क्या? का मतलब इसमें 2 एक्सिस जहाँ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस काम कर रहा है 2D में से होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो ये 2D हो गया है. तो ये 2D है. 2D नहीं है. 2D नहीं है. अच्छा इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है क्या? 2D है. हाँ. तो अभी हम लोग बेसिस से जाना है, तो आगे जाना. 2D है ना ये? ये 2D है. और क्या 2D है? ये 2D है क्या? नहीं है. तो
एक और एग्जाम्पल, ऐसे ही ये जितने सारे पेज हैं Okay, you can take from here. These are the rough pages. फाड़ना है क्या? वहाँ से लीजिए, वहाँ. All are the rough pages. There are so many pages you can take. Here 2D map, 2D. What is the area of this seat? Length into breadth. Suppose this is a square. अगर ये स्क्वायर है तो साइड टू साइड. तो ये स्क्वायर से क्या कोई 3D डायमेंशन बना सकते हैं? कुछ टाइप करके देखिए, क्या कोई 3D डायमेंशन बना सकता है? सपोज ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर से इसका एरिया क्या होगा? साइड टू साइड हो गया ना. तो ये से कोई क्या स्क्वायर क्यों में डिवाइड ही बनेगा? क्यों बनेगा? डिवाइड तो बनेगा नहीं. क्यों बना? एक और वो बॉल बना जाता है ना, जाके काम करके वो तो बना हुआ है. मैम बच्चे आपके स्मार्ट नहीं हैं. सीख रहे हैं नहीं कुछ ऐसा जिसको आप पिक कर सकते हैं. बुक तो अच्छा है, बुक तो ठीक ही है मैम. हम लोग के टेबल पे नहीं था. Ma'am, I want to come and explain. कितने कॉर्नर हैं? कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. अगर काउंट हो जाएगा कितने पेज से कितने सर्वे से कितने एजेस तक, ठीक है? और कोई डाउट? And similarly, another example like next outage. So example of the occupied and 76 passes, yes and 8. हर कुछ आपके लाइफ में एक भी क्या हो गया? आइसक्रीम हो गया, आपका कैप हो गया, बहुत कुछ चीजें जो टूटी हुई चीजें बना हुआ आपके रियल लाइफ में, उसको आप कनेक्ट करोगे तो आप इजी समझ सकते हो. ऐसे फॉलो करके Okay, now all of you take your seat and just wait for. जो आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आज के टाइम में हर कुछ सब कुछ आईटी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है. इवन की जो ये हमारा ट्रेनिंग भी जो हो रहा है टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है. अगर स्मार्ट बोर्ड नहीं होता तो ये ट्रेनिंग भी हमारा सक्सेसफुल नहीं होता. तो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर आईटी है तभी, और आज के टाइम में आईटी
इतना जरूरी हो गया है कि इवन की पैसा का आजकल ट्रांसफर भी आईटी ही के थ्रू होता है, टेक्नोलॉजी ही के थ्रू होता है। सो आईटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू। नेक्स्ट आता है पीएचई। पीएचई इट मींस फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, इसमें हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि हेल्थ फिटनेस पे हम लोग आजकल भागदौड़ की जिंदगी में बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं, लेकिन हर चीज का डेवलपमेंट में साथ देता है क्या? खुद का सहयोग। खुद का सहयोग तभी हो पाएगा जब हम जीवित रहें, और जीवित रहने के लिए हेल्थ पे हम लोग को, हेल्थ का फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और जिसके लिए हम लोग को हर कोई अपना डेली रूटीन में 1 घंटा या आधे घंटे का भी समय हेल्थ के लिए निकाल के कुछ डेली एक्टिविटी या फिर कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह जरूर करें, और स्पेशली अपना हेल्थ पे ध्यान देते हुए योगा जरूर करना चाहिए। और अगर सॉरी फॉर इंटरप्शन, और अगर दवाइयों से दूर रहना है तो फिटनेस को पास रखना है। लाइब्रेरी सेशन क्लोज, स्टॉप ट्रेनिंग, सेल्फ स्टडी। एवरीवन डू सेल्फ स्टडी। ओके, थैंक यू। Sen Gupta said, what about your topic? What about your topic? छुट्टी। स्कूल एक्टिविटी में है ना मैम, छुट्टी हो गई, अब छुट्टी करवाइए इसको। Okay. Start SST group. No, they will come. Yes, start. I am talking about the development of the country. Okay. आज सुषमा मैम ने जो वर्कशॉप रखा है उसमें बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बच्चों को सिखाना कैसे है, और कैसे उसको क्या उसका आगे फ्यूचर होगा। बट आज हम बताएंगे कि ये सब बेकार हो जाएंगे अगर हमारा कंट्री डेवलप नहीं होगा। और कंट्री को डेवलप करने के लिए हमारा जो SST और हमारा जो इकोनॉमिक्स पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इकोनॉमी इज द पिलर ऑफ द एनी कंट्री, डेवलपमेंट इज द पिलर ऑफ एनी कंट्री। सो हमारे कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जो मेक इन इंडिया, जो कि सभी को पता है कि मेक इन इंडिया अभी हमारे कंट्री में बहुत जोर शोर से है। तो हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मेक इन इंडिया बनाने में, डिजिटल इंडिया बनाने में और कंट्री को डेवलप करने में, बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री टू डेवलप, हाउ टू डेवलप द कंट्री। तो हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसमें बहुत काम कर रहे हैं, और वो बताएंगे कि अगर ये सभी चीज इम्प्लीमेंट हो जाएगा स्कूल में, कॉलेजेस में, तो अपने आप कंट्री डेवलप होगा और हम लोग सेल्फ रिलायंस होंगे। सेल्फ रिलायंस जो कि बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट्स है डेवलपमेंट का, पहला जो है वो है मनरेगा, ये है हमारे WTO, ये है हमारे नाबार्ड, ये है हमारे नीति आयोग, और ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हर स्कूल के हर एक जगह पे होना चाहिए, जो कि है स्वच्छ भारत। तो अब ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैसे बच्चों को कैसे बताना है कि ये क्या चीज है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि साइंस भी बेकार हो जाएगा, मैथ्स भी बेकार हो जाएगा अगर हमारा कंट्री डेवलप नहीं होगा, क्योंकि न स्कूल रहेगा न कॉलेज रहेगा और कुछ भी पढ़ाई नहीं होगा। मैं मनरेगा हूँ। करप्शन करप्शन करप्शन, इंडिया में हर जगह करप्शन है। एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था एक बार कि जब ऊपर से पैसा 1 रुपया आता है तो नीचे पहुँचते पहुँचते वो 15 पैसा हो जाता है। तो इसी करप्शन को खत्म करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। मेरा जन्म 2005 में हुआ, और मैं नीचे के जो लेबर लोग हैं उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हूँ। प्रेजेंट टाइम में जो उन लोगों को सैलरी है, उन लोगों का जो अमाउंट है उनका इनकम का, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है ताकि करप्शन को रोका जा सके। तो मैं करप्शन को खत्म करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। और अगर मनरेगा ना दे पाए, अगर गवर्नमेंट ना दे पाए तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड। और इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी यहाँ काम करती है गारंटी, यानी ये पूरा पैसा लेबर तक जाता है। तो मेरा आज
सक्सेसफुल ये मिशन कामयाब हो रहा है और मैं लोगों को उसका पूरा पैसा उसके अकाउंट में पहुंचाती हूँ। रुको रुको रुको, ये डब्ल्यूटी हो। अगर मैं नहीं दूंगी पैसा तो आप लोग ट्रीट कहाँ से करोगे और कहाँ से लाओगे ये सारा डेवलपमेंट? पता है इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1980 एंड 165 कंट्रीज जो है ये इसके क्या है मेंबर्स है, ठीक है। तो जब तक मैं पैसा नहीं दूंगी कभी भी डेवलपमेंट कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। अरे छोड़ो, तुम लोग तो केवल बस बैंक बैंक पैसा, असली बैंक तो मैं हूँ। मेरा नाम है नाबार्ड और मेरे नाम का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर मैं लोन ना दूँ किसी भी गांव के छोटे मोटे जो बैंक है जो किसान है उनको अगर मैं लोन ना दूँ तो मेरी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा? आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, ओके। And I was established in 1982 on July 12, okay? And I come under Ministry of Finance. और मैं क्या करती हूँ? मेरा काम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देना और इसके साथ साथ जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है गाँव में छोटे छोटे जो शिल्पकार होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, उसको लोन देना भी मेरा ही काम है, ठीक है। तो याद रहेगा ना मैं कौन हूँ? नाबार्ड। आई एम द मोस्ट पावरफुल, आई एम द बैंक। आप ही लोग का चांस है, बोलिए करने के लिए। इनके लिए और विश्व के हित के लिए कहीं ना कहीं कार्य करेंगे। देश को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो है कि लोगों को एक मंच पे ला करके उन सभी विभागों को एक साथ करना, जो कि आजादी के साथ ही जब हम अपने आप को कंसर्न घोषित किए थे, पहली बार जब सरकार बनी थी तब इस संगठन का स्थापना किया गया था 1950 में। उस समय इसका नाम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया रखा गया था, जिसका नेतृत्व उस समय के वर्तमान जो प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत किया था। फिर इसका नाम बदल करके 2015 में जहाँ पे भाजपा की सरकार आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इसका नाम बदलने के नीति आयोग है, जो कि इसके तहत सारे परियोजनाएं, सारे कार्यक्रम विकास से जुड़े हुए, विदेशों से संबंध हमारा कैसा होगा और किनके पास कितना बजट होना है, कितना नहीं होना है, इन सारे विशेषज्ञ एक साथ इसी छत के नीचे बैठ करके अपने भविष्य की प्लानिंग भी करते हैं और इसको इनके डिपार्टमेंट तक पहुँचाते हैं। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जो हमारे थे उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तब पूरी होगी जब हम अपने देश को स्वच्छ और साफ सुथरा रखेंगे। और इस स्वच्छता अभियान को शुरुआत करने के लिए नरेंद्र मोदी ने 2014 ईस्वी को चुना, ताकि उन्होंने अपना लक्ष्य रखा 2019 जिसमें कि 150वीं वर्षगांठ थी महात्मा गांधी की, तब तक इस अभियान को पूरा किया जा सके। यानी कि 2014 से 2019 तक का जो टाइम था वो हमारे स्वच्छ भारत अभियान के लिए रखा गया था। स्वच्छ भारत अभियान अभी हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह डस्टबिन यूज किया जाता है। हर जगह हम ये देखते हैं जो कहीं चॉकलेट जो खा रहे हैं उसका रैपर कहीं फेंक तो नहीं रहा है। हम एक बार जरूर सोचते हैं इन चीजों को। अगर हम कहीं घर में ही अगर कोई कचरा फेंकने जा रहे हो तो मन में ये जरूर विचार आता है जो हम ये जो फेंक रहे हैं इससे कहीं गंदगी तो नहीं फैल रही है। ये सारे इस स्वच्छ भारत अभियान का ही नतीजा है। और हम कहा भी गया है स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन में ही हर चीजों का निवास होता है। अगर हमारा शरीर, हमारे आसपास हमारी वातावरण शुद्ध नहीं रहेगी, स्वच्छ नहीं रहेगी तो हमारे सारे काम व्यर्थ हो जाएंगे, हम रोग ग्रसित हो जाएंगे और हम चाहकर भी अपने मानसिक तनाव, अपने मानसिक विकास को स्वस्थ नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे जरूरी है अपने आप को, अपने आसपास को, अपने अपनी कंट्री में आप जहाँ भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उन सारे जगहों को आप साफ सुथरा रखें और दूसरों को भी साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित करें। हम सब एक हैं, अलग नहीं है। इसी बात पर बोलेंगे भारत माता की जय। मातरम। Very good. Very nicely elaborated each and everything. Now the next group.